students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 5, that is Introduction to MS PowerPoint 2016. So here in this chapter, first we are going to study about PowerPoint presentation. What is PPT? Then we are going to study about the components of MS PowerPoint. After that, how to create a blank slide presentation, as a blank presentation slide, and how to add text in a slide, then how to save presentation, how to close a presentation, and how to exit PowerPoint 2016. So let's begin with me. MS Office is a complete software package developed by Microsoft Corporation. ये complete software package जो है आपका, जो किसी ने develop किया था, Microsoft Corporation ने develop किया था, USA. Besides Microsoft Word, Microsoft Office consists of other application program. Microsoft Word से other भी Microsoft में बहुत ऑफिस में बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है. These are used for specific purposes. ये किस लिए यूज होता है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है. One of the application program in MS Office and Microsoft PowerPoint, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. So it is a presentation software. किस चीज के ये Microsoft PowerPoint क्या होता है? ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप अपनी सारी PPTs क्रिएट करते हो. It is most popular in the business world. It is used to create simple to प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन. किससे यूज होता है? सिंपल से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए ना. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेवरल पेजेस कॉल्ड स्लाइड, जिसको कलेक्शन होती है सेवरल पेजेस की, जिसको स्लाइड्स कहते हैं. ईच स्लाइड इज अ सिंगल स्क्रीन. ईच हर स्लाइड क्या होती है? सिंगल स्क्रीन होती है, जिसमें क्या होता है? टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स होती है, ग्राफिक्स होती है, टेबल, साउंड्स एंड वीडियोस. द कलेक्शन कैन रन ऑटोमेटिकली. जो कलेक्शन होता है ऑटोमेटिकली रन कर सकता है, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं प्रेजेंटर से. The slides can be arranged as sequence. जो slides होती है अरेंज हो जाती है सीक्वेंस में प्रेजेंट करने के लिए आइडियाज एंड व्यूज जो भी होते हैं टॉपिक से रिलेटेड इन अ लॉजिकल मैनर. नाउ स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016. आप कैसे स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर 2016 को? फर्स्ट आपको कहाँ जाना है? अपने स्टार्ट बटन पे जाना है. देन स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा, वहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ऑप्शन. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट? क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले क्या होता है आपका? This is the ribbon. This is the quick access toolbar. This is the slide view, slide pane. वहाँ पे slide show होती है. This is the view button. This is the slide show button. This is the add comment. This is the placeholder जहाँ पे आप text place करते हो. And this is the notes pane जहाँ पे आप notes add करते हो. Now what is title bar? Title bar is the top appears at the top of the screen. यहाँ पर title bar होता है. So it appears on the top of the screen. It contains close, maximize, minimize button in the right side. यहाँ पे close, minimize, maximize button होता है right side में available. Now quick access toolbar क्या होता है? This toolbar provides access to commands. ये क्या provide करता है? Access provide करता है commands पे जो आप frequently use कर सकते हो. It is located on the title bar. ये कहाँ पे located होता है? Title bar में located होता है. This is a strip of buttons. ये क्या होता है? Strip of buttons होता है across the top of the main window. Here you find access to everything. यहाँ पे आपको access मिल जाता है हर चीज से related the program has to offer. Now status bar. It display the current slide number. ये क्या करता है? current slide number को display करता है. Total number of slides भी आती है and view buttons होता है. Now slide pane. It is located on the left side of the window. कहाँ पे located होता है? Left side of the window में located होता है और display करता है an outline view of all the slides. एक outline view देता है आपकी सारी slides का. Now blank slide वो कहाँ है? It is located in the middle of the window. आपके विंडो के मिडल में लोकेटेड होता है जहाँ पे आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो ब्लैंक स्लाइड में. ना रूलर, द टू रूलर्स, एक आपका वर्टिकल होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है. दो रूलर होते हैं, वो लोकेटेड होता है, एक टॉप में होता है और एक लेफ्ट साइड ऑफ द करंट स्लाइड में रेस्पेक्टिवली लोकेटेड होता है. नाउ प्लेस होल्डर. इट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट इन योर स्लाइड. से ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता है आपके स्लाइड्स में. It can be used to hold text, pictures and charts. ये किस लिए यूज होता है? टेक्स्ट, पिक्चर्स और चार्ट्स को होल्ड करने के लिए. Now creating a blank presentation slide. कैसे क्रिएट करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्लाइड को? To create a new blank presentation slide, follow the steps given below. आपको क्या करना है? फाइल टैब में जाना है. So फाइल टैब में जाने के बाद न्यू ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है, वो डिस्प्ले हो करेगा बहुत सारे ऑप्शन, उसमें से न्यू को सिलेक्ट करना है. फ्रॉम दिस ऑप्शन क्लिक करना है आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे. ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद ब्लैंक स्लाइड्स ओपन हो जाएगी.
Now adding text in up slide. अब text कैसे ऐड करते हैं उस बैंक स्लाइड में? Follow the steps to give, follow the given steps below to add text in a slide. आपको क्या करना है? प्लेस करना है माउस pointer, click to add title placeholder में. The cursor changes into line shape at the center. जो कर्सर होता है वो चेंज हो जाता है लाइन शेप में आपके सेंटर में. सेलेक्ट करना है आपको, क्लिक टू एड सबटाइटल एंड टाइप करना है सबटाइटल यू वांट इन द बॉक्स, जो आपको चाहिए अपना सबटाइटल अपने बॉक्स में. नाउ सेविंग अ प्रेजेंटेशन. अब सेव कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन को? द डिफरेंट स्टेप्स टू सेव अ प्रेजेंटेशन आर गिवन बिलो. देयर आर मेनी स्टेप्स. आपको सबसे पहले फाइल टैब पे जाना है. फाइल टैब पे जाने के बाद आपको सेव एज या फिर सेव का ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, दो दिख रहे हैं. सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने. देन आपको फाइल नेम टाइप करना है यहाँ पे, देन सेव बटन पे क्लिक कर देना है. आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो सेव हो जाएगी. There are some shortcuts of PowerPoint. You can also close PowerPoint by pressing Alt+F4. आप Alt+F4 की प्रेस करके भी अपने PowerPoint को बंद कर सकते हो. तो इंसर्ट अ न्यू स्लाइड प्रेस कर सकते हो. इंसर्ट करने के लिए न्यू स्लाइड को आपको क्या करना है? Ctrl+M प्रेस करना है. टू डुप्लीकेट द करंट स्लाइड, डुप्लीकेट करने के लिए करंट स्लाइड को आपको Ctrl+D प्रेस करना है. इंक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज को आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+ इंक्रीज साइन ग्रेटर देन साइन. टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज आपको Ctrl+Shift+ लेस देन का साइन करना है प्रेस. टू मूव टू द नेक्स्ट प्लेस होल्डर प्रेस करना है आपको Ctrl+Enter की को. नाउ क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन. अब क्लोज कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन को? आफ्टर फिनिशिंग द प्रेजेंटेशन यू कैन क्लोज इट यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स. आप क्लोज कर सकते हो कुछ स्टेप्स यूज करके. आपको क्लिक करना है फाइल मेन्यू पे. फाइल मेन्यू पे क्लोज ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना है. इन केस यू हैव नॉट सेव्ड योर प्रेजेंटेशन द कंप्यूटर विल आस्क यू टू सेव इट. अगर आपने अभी प्रेजेंटेशन सेव नहीं करी है तो आपका कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि सेव कर लो. देन आपको क्लिक करना है यस पे अपनी सेव करने के लिए प्रेजेंटेशन को. इफ यू डोंट वांट टू सेव क्लिक कर देना आपको नो पे. अगर आपको सेव नहीं करना आप नो पे क्लिक कर दो. फाइल इन MS PowerPoint 2016 इज सेव विद एन एक्सटेंशन ऑफ .pptx एक्सटेंशन से सेव होती है. नाउ एग्जिट कैसे करते हैं PowerPoint 2016 को? You can exit PowerPoint simply by clicking on close button. Close button पे simply click करके आप exit कर सकते हो. राइट कॉर्नर में जो आपके टाइटल बार में अवेलेबल होता है लाइक हियर. नाउ द कंप्यूटर विल आस्क यू टू सेव योर प्रेजेंटेशन. अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन सेव नहीं करी होगी आपका कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि प्रेजेंटेशन को सेव कर लो. क्लिक द अप्रोप्रिएट बटन टू क्लोज द PowerPoint. अप्रोप्रिएट बटन पे क्लिक कर देना PowerPoint को क्लोज करने के लिए. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.